Hello friends, hope you all are doing good. So before going to new topic, let's have a super fast revision of topics which we have discussed in previous video. So do you remember what we have discussed in our previous video? I know you all are knowing very well. So in previous video we discussed about modes of nutrition. So there are two modes of nutrition. What are they? Autotrophic mode of nutrition and heterotrophic mode of nutrition. What is autotrophic mode of nutrition? Autotrophic is made of two words. Auto means self and trophic means nourishment. So this mode of nutrition is self nourishment. इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं. तो what is the example of this mode of nutrition? All green plants. सारे green plants इसके examples हैं. Next is heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic here also made up of two words. Hetero means others and trophic means nourishment. So in this type of mode of nutrition, organisms depend upon other plants for their food. They don't make their own food. Okay, they are dependent on other organisms for their food. An example of heterotrophic mode of nutrition is human beings and animals, and there are few plants also. Okay, after that we learned about some terminologies of cells. So what are cells? The body of living organism are made of tiny units called cells. हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है वो छोटे छोटे यूनिट से बनी होती है. उन यूनिट्स को हमने नाम दिया है सेल. ओके, रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी. एंड व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द सेल? सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन? It allows entry and exit of substances. What is the function of nucleus? Nucleus contains genetic material. और ये genetic material क्या है? RNA and DNA. न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं. न्यूक्लियस सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है. नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म here made up of two words. Cyto means cell and plasm means fluid. Okay, so nucleus is surrounded by jelly-like substance and this jelly-like substance is called cytoplasm. So friends, today we'll understand three questions. We know that plants can prepare their own food themselves. Now friends, it's time to understand some more about it. So the first question we need to understand is, how do plants prepare their own food? Plants अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं? Number 2, in which part of the plant food is made? ऐसा कौन सा प्लांट का पार्ट है जिसमें खाना बनता है? And question 3 is, from where plant gets raw material for its फूड प्रिपरेशन. प्लांट को रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है खाना बनाने के लिए? रॉ मटेरियल का मतलब क्या है? कच्चा सामान. ओके, सो वन बाय वन विल डिस्कस अबाउट दीज क्वेश्चंस. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड? प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, खुद से कैसे बनाते हैं? द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स इज फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स में खाना बनाने की प्रोसेस होती है और उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस. विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट फूड इज मेड? कौन सा प्लांट का पार्ट है जिसमें खाना बनता है? सो फ्रेंड्स, your mom prepares food in a kitchen. In similar way, leaves are the kitchen of the plants. Leaves क्या है?
प्लांट्स की किचन है। सारा खाना कहाँ बनता है? लीव्स के अंदर। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन लीव्स। प्लांट्स अपना खाना कहाँ प्रिपेयर करते हैं? लीव्स के अंदर। इज दैट क्लियर? फ्रॉम वेयर प्लांट गेट्स रॉ मटेरियल्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड। अब भाई हमें पता चल गया खाना बनाने की प्रोसेस क्या होती है, हमें ये भी पता चल गया कि खाना प्लांट बनाते कहाँ पे है। अब हमें जानना है कि प्लांट रॉ मटेरियल कहाँ से लेते हैं खाना बनाने के लिए। ओके, तो सॉरी फ्रेंड्स, एक बारी मैं वापस से क्वेश्चन 2 पे जाना चाहूँगी। लीव्स को हम फूड फैक्ट्रीज भी बोलते हैं। We can say that leaves are the food factories of the plants, and this is very important question. ये एक नंबर में पूछा जाता है। Name the food factories of the plants. So what is a food factory of plant? It is leaves. Okay. Now, from where plant gets raw material for preparation of food? Plants को raw material कहाँ से मिलता है खाना बनाने के लिए? एयर से प्लांट्स लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, सॉइल से लेंगे वाटर, और सॉइल से ही प्लांट्स लेंगे मिनरल्स। ओके, सपोज यू आर प्लानिंग टू मेक अ डिश फॉर योर बर्थडे, सो व्हाट विल यू डू? You will collect all the necessary ingredients and you prepare dish. In similar way, plants also collect all the raw material जैसे carbon dioxide, water and minerals। वो सारा raw material collect करेंगे और कहाँ पहुँचा देंगे? leaves के अंदर। और फिर leaves क्या करेंगी? food prepare करेंगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे leaves के पास ही क्यों जाएगा raw material, रूट्स या स्टेम के पास क्यों नहीं? तो यू ऑलरेडी नो दैट लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट्स एंड दे प्रिपेयर द फूड। फ्रेंड्स, it is important to understand that how these raw materials are transported to leaves. हमने सब कुछ जान लिया, खाना कैसे बनाते हैं प्लांट्स, खाना बनता कहाँ पे है, और प्लांट्स के लिए खाना बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स कौन कौन से चाहिए होते हैं। ये 3 चीज़ हम जान चुके हैं। तो अब हमें ये जानना भी इम्पॉर्टेंट है कि जो ये रॉ मटेरियल्स हैं ये लीव्स तक पहुंचते कैसे हैं। हमें पता है प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एयर से एंड दे टेक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, एंड रूट्स विल एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। ओके, now let's understand how leaves absorb carbon dioxide from the air। अब हम समझेंगे कि leaves कार्बन डाइऑक्साइड एयर से कैसे लेती हैं। There are small tiny pores present on the surface of the leaves। leaves का जो surface होता है उसके ऊपर छोटे छोटे छेद present होते हैं। These pores are surrounded by bean shaped structures called guard cells। और जो ये पोर्स होते हैं वो किससे सराउंडेड होते हैं? बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स। जैसे आपने राजमा का सीड देखा होगा, गार्ड सेल्स भी क्या होते हैं? राजमा जैसे होते हैं। जो राजमा जैसी स्ट्रक्चर होती है उनको हम क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स। तो जो ये पोर्स होते हैं वो किससे सराउंडेड होते हैं? गार्ड सेल से। दीज टाइनी पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। और जो छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। तो विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। तो इन स्टोमेटा की हेल्प से प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? सिंपली द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इज गैसियस एक्सचेंज। ओके, एक बारी हम स्टोमेटा को एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। This is a leaf and you can see figure C. It is of stomata. You can see here 2 bean shaped structures. These are called guard cells। और इसमें एक बीच में क्या है? ओपनिंग है। इस ओपनिंग का नाम क्या होता है?
stomatal opening. So this is the figure of stomata. Is that clear? Now Bhujo wants to know how water and minerals absorbed by roots reach the leaves. भूजो जानना चाहती है कि वाटर और मिनरल्स जो रूट्स ने एब्जॉर्व किए हैं वो लीव्स तक कैसे पहुंचेंगे. सो वाटर एंड मिनरल reach leaves through pipe-like structure called xylem, which are present in roots, stems, leaves and branches of the plants. अब ये वाटर एंड मिनरल्स कैसे पहुँचेंगे लीव से, रूट से लीव्स तक कैसे पहुँचेंगे. तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है आपको ये, और इसका नाम क्या होता है, जाइलम. ये क्या करती है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करती है रूट से कहाँ पे, लीव्स में. ओके. और ये जाइलम रूट्स में, स्टेम्स में, लीव्स में, ब्रांचेस ऑफ द प्लांट में प्रेजेंट होता है. जाइलम एंड वेसल्स हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट. जो जाइलम और वेसल्स होते हैं वो वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं फ्रॉम रूट्स टू दी लीव्स. तो आप एक सिंपल सा फॉर्मूला देखें तो क्या होगा, जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, वाटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, जल. जाइलम जल ट्रांसपोर्ट करेगा. और फ्लोएम क्या करेगा, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करेगा फूड. फ्लोएम फूड, जाइलम वाटर. ओके. तो इसके लिए याद करने के लिए ट्रिक क्या है, जाइलम जल, फ्लोएम फूड. ओके. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक. फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में डिटेल में. आपने कभी सुना है फोटोसिंथेसिस के बारे में? 6th क्लास में आई थिंक यू डेफिनेटली heard about photosynthesis. Okay, अब हम पढ़ते हैं क्या होता है. Here photosynthesis is made up of two words. Photosynthesis दो वर्ड से बना होता है. Photo means light and synthesis to combine or to make. Okay, so it is a process through which plants make their food. But यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी है. ठीक है, ये वो प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं. तो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में ही पॉसिबल है. मतलब सिर्फ फोटोसिंथेसिस डे टाइम में ही होता है. इन द नाइट फोटोसिंथेसिस विल नॉट अकर. क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, लाइट. और लाइट सिर्फ हमें कब मिलती है, डे टाइम में. ओके. नाउ पहेली वांट्स टू नो, सॉरी फ्रेंड्स, वी विल अंडरस्टैंड दी इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस. आपकी बुक में एक इक्वेशन दी गई है फोटोसिंथेसिस की. तो क्या होता है, प्लांट्स क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के बारे में मैं आपको अभी बताती हूँ थोड़ी देर में. तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ने लिया और वाटर प्लांट ने लिया, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में. और इन दोनों से मिलके इन्होंने क्या बनाया, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन. ठीक है. तो इक्वेशन अगर हम देखें, केमिकल इक्वेशन इसे बोलते हैं. तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O मिले और किसकी प्रेजेंस में, एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में. तो उन्होंने क्या बनाया, कार्बोहाइड्रेट. C6H12O6 is the formula of glucose and ऑक्सीजन उन्होंने रिलीज की है. ठीक है.
तो हमें क्या खाना मिला, खाना क्या बना, प्लांट ने क्या खाना बनाया है, कार्बोहाइड्रेट्स और एनर्जी रिलीज की है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला ये है C6H12O6। और नीचे आप देख सकते हैं ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आप पढ़ेंगे 9th क्लास में। तो अभी के लिए सिर्फ आप इतना जानिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll make carbohydrates and release oxygen. Okay. Now, Paheli wants to know that why human beings can't synthesize their own food. अब आप लोगों के दिमाग में भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ह्यूमन बींग्स खाना क्यों नहीं बना सकते अपना। तो माय डियर फ्रेंड्स, the leaves contains a green pigment called chlorophyll. लीव्स के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। और लीव्स का कलर भी किसकी वजह से ग्रीन होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हेल्प्स द लीव्स टू कैप्चर द सनलाइट। और ये क्लोरोफिल का फंक्शन क्या होता है, जो ये क्लोरोफिल लीव्स को हेल्प करता है सनलाइट को ट्रैप करने के लिए, कैप्चर करने के लिए। और ये सनलाइट किस में काम आएगी फिर, टू प्रिपेयर फूड। ओके, सो इन ह्यूमंस, सॉरी क्लोरोफिल की स्पेलिंग यहाँ गलत हो गई है, सॉरी। इन ह्यूमंस chlorophyll is absent, so we can't capture solar energy, and without solar energy we know that photosynthesis is not possible. ह्यूमंस के अंदर ये क्लोरोफिल पिगमेंट एब्सेंट होता है जिसकी वजह से सनलाइट कैप्चर नहीं कर पाते हैं। और हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए हमें क्या चाहिए, सोलर एनर्जी इज मस्ट। सो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल humans can't prepare their own food. I think I'm very clear to you all. Now it's time to check your knowledge. So please bring your notebooks and solve these questions with me. बाकी मुझे पता है you all are very intelligent. Question 1 is, in the absence of which of the following will photosynthesis not occur in leaves? In the absence of which of the following will photosynthesis not occur in leaves? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी एब्सेंस से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी? ऑप्शन ए गार्ड सेल्स, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी वैक्यूल। आई नो आप सबको आंसर पता है, अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा है, इट इज़ ऑप्शन बी क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल अगर एब्सेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, क्योंकि क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है और सनलाइट खाना बनाने में हेल्प करती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीफ आर कॉल्ड। लीफ के सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए स्टोमेटा, ऑप्शन बी लैमिना, ऑप्शन सी वेन्स। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करते हैं? दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। सो क्वेश्चन 3 is, which of the following raw material is available in the air for photosynthesis? इनमें से कौन सा रॉ मटेरियल है जो फोटोसिंथेसिस के लिए अवेलेबल होता है एयर के अंदर? डोंट बी कंफ्यूज चिल्ड्रन। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन सी इज नाइट्रोजन। सो व्हाट इज द राइट आंसर? Right answer is option B, carbon dioxide. Is that clear? I hope you all are enjoying this quiz too. So friends, with this topic we will conclude our video, and last but not least, the topic 4 will be covered in our next video. So be prepared for next topic. Okay.
Thank you, everyone.